Specification of engineering materials. Now, materials can be designated on the basis of certain symbols, certain numbers, or we can say the letters, and that is called the specification of engineering materials. So, in this unit, we will see the how materials like steels and cast iron, alloy steels are specified, right, with the help of their mechanical composition, chemical composition or mechanical properties. Designation or identification of material class by number, letter, symbol, name or combination is called specification. Normally it is based on the two factor, that is the chemical composition or mechanical properties. Now we will see what are the designation systems are there. First one is that is the Indian designation system. We called it as a Bureau of Indian Standard. Second one is the AISI, that is American Iron and Steel Institute. Third one is the Society of Automotive Engineers, SAE, and last one is the British standard. BIS, we generally focusing on only the Indian standard, that is called IS, or we call it BIS also, right? So only we will focus more on this topic. Now certain materials here mention, these materials are designated by the Indian standard only. Cast iron, plain carbon steel, tool steel, low and medium alloy steel, high alloy steel. Low alloy steel means the alloying element percentage is less than 10%. If percentage of alloying element is greater than 10%, we call it as a high alloy steel. Let's say now we will start the designation of cast iron. कास्ट आयरन को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है? तो कास्ट आयरन के अंदर फर्स्ट जो लेटर रहेगा दैट विल इंडिकेट द टाइप ऑफ द कास्ट आयरन, एंड आफ्टर द लेटर देर इज अ नंबर that will indicate the minimum tensile strength in Newton per mm square. If the first letter is FG, we call it as a grey cast iron. If it is WM, then we call it as a white cast iron. If it is PM, then we call it as a perlitic malleable cast iron. And if it is SG, then we call it as a spheroidal graphite cast iron. Take an example. Let's say suppose this is the example FG150. The first FG will indicate it is a grey cast iron, and 150 is the minimum tensile strength, that is Newton per mm square, 150 Newton per mm square. So how we will read this cast iron then? It is a grey cast iron with minimum tensile strength 150 Newton per mm square or megapascal. 1 Newton per mm square is also called as a megapascal, we can call it. Now second example, WM250. What is it? White hot malleable cast iron. WM is a white hot malleable cast iron with minimum tensile strength. Guess please, 250 Newton per square mm. Very good. SG150. What is it? SG indicates spheroidal graphite cast iron with minimum tensile strength 150 Newton per mm square. Now we will see the designation of steel on the basis of mechanical property. As we have seen the designation of the cast iron on the basis of mechanical property, similarly steels are also designated on by the mechanical properties. Now instead of FG, there will be other symbols like Fe, E or K. If it is Fe, then it is called steel. Fe indicates the steel, E indicates the edge strength, and K indicates the keel steel. And we have two types of the properties are there. One is the yield strength or tensile strength. If E is not shown, then we consider it as a minimum tensile strength. Let's say take an example, Fe350. It means Fe means it is a steel, and 350 there is no E, we can't, then we it is a ये क्या है, ये minimum tensile strength है, कितनी, 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अभी सेकंड एग्जांपल देखिए, Fe 380. Here E is for yield strength. E जो है इधर वो yield strength के लिए लिया है, यानी कि ये स्टील है और उसकी मिनिमम yield strength कितनी है, 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ टेक अदर एग्जांपल, Fe410K. E है कि यहाँ पे कैपिटल E नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ कील स्टील. K फॉर कील स्टील है विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर. K फॉर कील्ड और वी कैन कील स्टील, राइट. ऐसे हम अलग अलग एग्जांपल देख सकते हैं. अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने डिजिग्नेशन देखा. सिमिलरली
केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर स्टील को डेजिग्नेट किया जाता है। जनरली जो स्टील होते हैं वो प्लेन कार्बन स्टील होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 40C8। अभी जो 40 है उसको 100 से डिवाइड कीजिए, दैट विल इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज़ 0.4% कार्बन। और सी के बाद में जो लेटर रहेगा दैट विल इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीज डिवाइडेड बाय 10। 8 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 0.8% ऑफ मैग्नीज। बघा, इसके अंदर 40 को 100 से डिवाइड करना है और सी के बाद में जो नंबर रहेगा उसको 10 से डिवाइड करना है। जो 40 सी के पहले जो है क्या इंडिकेट करेगा, वो परसेंटेज ऑफ कार्बन, और सी के बाद का क्या इंडिकेट करेगा, परसेंटेज ऑफ मैग्नीज, उसे 10 से डिवाइड करना है। यानी कि ये प्लेन कार्बन स्टील है विथ 0.4% कार्बन एंड 0.8% मैग्नीज। इस ऐसे हम इसे डेजिग्नेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं। 45C10S18। अभी देखिए इसके अंदर 0.5% कार्बन है। ये क्या है, 10 से उससे डिवाइड करना है, वो परसेंटेज ऑफ मैग्नीज मिलेगा, 1% मैग्नीज है। और सल्फ़र जो रहता है, सल्फ़र, फॉस्फोरस, इनको 100 से डिवाइड करना है। यदि वो आते हैं तो उनसे सल्फ़र रहेगा, Fe रहेगा, T रहेगा, लीड रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, उसको 100 से डिवाइड करना है डायरेक्टली। सो 18 को 100 से डिवाइड किया तो वो क्या है, सल्फ़र का परसेंटेज, दैट इज़ 0.18% सल्फ़र। दिस इज़ द प्लेन कार्बन स्टील having carbon, phosphorus, sulfur, manganese, silicon as their ingredient, right? Except manganese, all elements are considered 100%. इतना ध्यान में भी रखा तो भी you can get the right value, right? So designation of tool steel. अभी tool steel कब indicate करेंगे? Tool steel when it is written T there in the composition 10T4, 10 divided by 100, 0.1% कार्बन है, ये टूल स्टील है। उसके बाद में जो नंबर रहेगा उसको 10 से डिवाइड करना है और परसेंटेज ऑफ मैग्नीज इंडिकेट करेगा। तो क्या इंडिकेट करेगा, परसेंटेज ऑफ मैग्नीज। 4 डिवाइडेड बाय 10 म्हणजे इट इज़ अ टूल स्टील, T फॉर टूल स्टील, हैविंग 0.4%, 0.1% कार्बन एंड 0.4% मैग्नीज। ओके, अभी डेजिग्नेशन ऑफ लो एंड मीडियम अलॉय स्टील। लो अलॉय और मीडियम अलॉय स्टील मीन्स अलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज लेस दैन 10% है। उसके अंदर फर्स्ट नंबर इंडिकेट करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, सेकंड, फोर्थ, 6 इंडिकेट करेगा अलाउइंग एलिमेंट्स, एंड थर्ड, फिफ्थ, 7th इंडिकेट करेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा वो उसको इंडिकेट करेगा, राइट। अभी अलाउइंग एलिमेंट्स है कुछ और उनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। Cr, Co, Ni, Mn, सिलिकॉन, टंगस्टन, दीज आर द एलिमेंट्स। जब ये इंडिकेट रहेंगे इसके अंदर डेजिग्नेशन के अंदर, उससे हमें 4 से डिवाइड करना है, वो उसका अलाउइंग परसेंटेज होगा। यदि क्रोमियम दिख रहा है आपको 8, तो 8 को 4 से डिवाइड करो तो उसका 4% क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा। अभी नीचे के एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, लीड है, कॉपर है, बेरिलियम है, वैनेडियम है, नियोबियम है, टाइटेनियम है, मोल्बिडियम है, यमो, उसको 10 से डिवाइड करना है। और आपको पता है फॉस्फोरस, सल्फर और निकेल रहेगा तो उसको 100 से डिवाइड करना है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ध्यान में रखना है। अब कैसे ध्यान में रखते हैं आपका वो आप पे डिपेंड। अभी देखिए 40 क्रोमियम 4 मोल्बिडियम 3, ऐसा एक स्टील दिया है, यानी कि ये लो अलॉय स्टील है। क्योंकि इसके पहले कुछ डेजिग्नेशन रहा तो ही हम उसे हाई अलॉय कहेंगे। इसके पहले समझो एक्स रहता है, XT रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई अलॉय कहेंगे। इधर 40 लिखा है ST से सीधे। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि पहला इंडिकेट करेगा 40 क्या इंडिकेट करता है, 0.4% कार्बन। अभी क्रोमियम का देखिए, क्रोमियम का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है नीचे लिखा है इधर, ये जो है क्रोमियम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इधर दिख रहा है आपको। क्रोमियम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 4, यानी उसे 4 से डिवाइड करना है। सीधे सीधे 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 1% क्रोमियम। और मोल्बिडियम दैट इज़ उसको 3, मोल्बिडियम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10, उसे 10 से डिवाइड करना है। 3 डिवाइडेड बाय 10, 0.3% मोल्बिडियम आ गया। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप सीधा डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द व्हाट, दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ अलाउइंग एलिमेंट। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल देखिए, समझो। इस एग्जांपल के अंदर 35 में Mn 6 मोल्बिडियम 3 ऐसा दिखा है। अभी 35 क्या इंडिकेट करता है, 0.35% कार्बन, उसे 100 से डिवाइड करना है। अभी देखो Mn जो है, Mn क्या है हमारा, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 4, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि कितना होगा, वो 6 डिवाइडेड बाय 4 होता है 1.5% Mn। और जो Mo है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 है, उसको 3 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ दी 0.3% मोल्बिडियम। ऐसा डेजिग्नेशन रहता है।
अभी हाई अलॉय जो स्टील होगा, हाई अलॉय स्टील और हाई अलॉय स्टील, तो उसके पहले एक्स रहता है, ये एक्स इंडिकेट करेगा क्या, हाई अलॉय स्टील, और एक्स टी रहेगा तो इंडिकेट हाई अलॉय टूल स्टील, एक्स टी हाई अलॉय टूल स्टील। मल्टीप्लाइंग फैक्टर नॉट यूज इन दिस केस, डायरेक्टली आपको बहुत ईजी डेजिग्नेशन सिस्टम है, डायरेक्टली आपको सीधा परसेंटेज ऑफ अलॉइंग एलिमेंट लिखना है। अभी एक एग्जांपल लेते सीधा समझ लेंगे। X15 क्रोमियम 25 निकेल 12 हाई अलॉय स्टील है 0.1, एक्स क्या इंडिकेट करता है, हाई अलॉय स्टील, और उसके बाद में 15 है, उसको 100 से डिवाइड करो, वो परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन, राइट। अभी देखिए ये 25 है, 25 जो है डायरेक्टली उसका परसेंटेज लिखना है, क्या है वो, क्रोमियम का परसेंटेज कितना है, 25% क्रोमियम। निकेल कितना है, 12% निकेल, डायरेक्ट लिखना है। XT 75 देखो हाई अलॉय टूल स्टील है, XT क्या है, हाई अलॉय टूल स्टील, बाद में 75 को 100 से डिवाइड करो, 0.75% क्या रहेगा उसका कार्बन का परसेंटेज, और बाद में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। इट्स बहुत सिंपल हाई अलॉय स्टील की डेजिग्नेशन सिस्टम। अभी कुछ स्टील के एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपको उसके डेजिग्नेशन और कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन बताना है। अभी देखिए T70 क्या है, ये टूल स्टील है, और इसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है, टूल स्टील हैविंग 100 से डिवाइड करो 0.7% कार्बन। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे हम, Fe470W। अभी देखिए Fe है तो स्टील है, 470 है तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, W क्या है, W इंडिकेट ये आइदर टाइप ऑफ द स्टील और इट इज़ अ प्रोसेस, वेल्डिंग और एनीथिंग, राइट। देखो दिस इज द स्टील विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 470 न्यूटन पर mm² एंड हैविंग गुड वेल्डेबिलिटी, ओके। सिमिलरली वी कैन टेक सेकंड एग्जाम्पल 45C10S18। अभी देखो ये क्या है, एक स्टील है, देखो 45 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.45% कार्बन। बाद में क्या है, 10 है तो वो मैग्नीज का परसेंट रहता है, 1% मैग्नीज, और सल्फर को कितने से डिवाइड करना है, 100 से, यानी कि क्या रहेगा 0.1% सल्फर, 0.18% सल्फर। देखिए स्टील विथ 0.45% कार्बन, 1% मैग्नीज, 0.18% सल्फर। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल XT60W12 क्रोमियम 4 वैनेडियम। देखो XT आए तो क्या है, हाई अलॉय, X इंडिकेट हाई अलॉय, और T है तो टूल, हाई अलॉय टूल स्टील। पहला 60 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, वेरी गुड। एंड देन डायरेक्टली हाई अलॉय स्टील के अंदर कुछ भी डिवाइड करना नहीं है, पहले सिर्फ 60 को डिवाइड करना है, बाद में डायरेक्ट क्या है परसेंटेज ऑफ अलॉइंग। टंगस्टन कितना है, 12%, क्रोमियम कितना है, 4%, वैनेडियम कितना है, 1%, वेरी गुड। दिस इज हाई अलॉय टूल स्टील विथ 0.6% carbon, 12% tungsten, 4% chromium and 1% vanadium. In this way we have to designate the steel. Now there is a other designation system also, that is AISI, that is American Iron Steel Institution designation. उसके अंदर भी designation किया जाता है, उसके अंदर पहला डिजिट जो इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेट करता है टाइप ऑफ स्टील, सेकंड डिजिट जो रहता है प्रीडोमिनेंट अलॉइंग एलिमेंट कौन सा है, और थर्ड और फोर्थ इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। समझो आपने AISI 514 और 0 लिया है समझो, तो उसके अंदर वो 5 जो टाइप ऑफ स्टील दिखाएगा, राइट, टाइप ऑफ स्टील कौन सा है, और बाद में उसका 1% क्या रहेगा, उसका अलॉइंग एलिमेंट रहेगा, और 40 को 100 से डिवाइड करना है, दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा। अभी देखिए AISI, ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जाम्पल 1035 AISI क्या है, प्लेन कार्बन स्टील है, 1 इंडिकेट टाइप ऑफ स्टील एंड 0.35% कार्बन, 1 इंडिकेट what plain carbon steel, okay. So in this way we have seen the designation system of the steel, okay. 1 indicate plain carbon steel, 2 indicate nickel series, 3 nickel chromium, 31 for manganese steel। ऐसा डेजिग्नेशंस दिया है AISI के अकॉर्डिंगली, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ मैंने जो डेजिग्नेशन बताए इंडियन स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन वही ध्यान में रखना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।